Friends, in this video, we are going to learn about the cardiac cycle. In this video, we have to cover 4 points. First is the introduction, second is the cardiac cycle, third is the numerical corner, and fourth is the summary. The first is introduction. All the events involved in one heartbeat combinedly known as कार्डियक साइकिल. एक हार्टबीट के दौरान हार्ट में जो भी घटनाएं घटती हैं उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. व्हाई इट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल? इसे कार्डियक साइकिल क्यों कहते हैं? आपको मालूम है मीनिंग. कार्डियक मीन्स हार्ट और साइकिल मीन्स these events they take place repeatedly or one by one in proper sequence for many times, hence it is called cycle. One cardiac cycle is equal to one heartbeat, and the duration of one cardiac cycle is about 0.8 seconds. एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होती हैं. कार्डियक साइकिल हमें समझ लेने के लिए दो मीनिंग्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज द डायस्टोल. डायस्टोल मीन्स द रिलैक्सेशन. ये दो मीनिंग्स ठीक से याद रखना. सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन. ओके, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे. सेकंड पॉइंट इज कार्डियक साइकिल. ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल 3 मेजर इवेंट्स टेक प्लेस. द फर्स्ट इज जॉइंट डायस्टोल and its duration is about 0.4 seconds. Second event is atrial systole. Its duration is 0.1 second. And the third event is ventricular systole and its duration is 0.3 seconds. Thus, total duration is 0.8 seconds. हम शुरुआत करते हैं जॉइंट डायस्टोल से. During joint diastole, all the 4 chambers, that is both atria and both ventricles, they are relaxed. Tricuspid and bicuspid valves, they are open. Right atrium is receiving the blood through vena cava and coronary sinus, and of course it is deoxygenated blood. Again, left atrium simultaneously receiving the oxygenated blood through pulmonary veins. As tricuspid and bicuspid valves are open, both the atria, when they receive the blood, they directly pour the blood into respective ventricles. That is, the blood from right atrium collected in right ventricle and blood from left atrium collected in left ventricle. And during this period, the semilunar valves are closed. Thus, ventricles are started their filling. ventricles में blood collect होना शुरू हो चुका है. Then ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, जो हमने कंडक्टिंग सिस्टम में पिछली वीडियो में देखा है. अगर आपने पिछली वीडियो कंडक्टिंग सिस्टम की नहीं देखी है तो ध्यान से उसे भी देख लेना, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल के कंसेप्ट क्लियर होने के लिए वो टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है. दस, साइनोएट्रियल नोड SAN, it generates action potential, and due to this atria get contracted. Due to their contraction, the blood from atria is
forced into the ventricles, and now ventricles are filled completely. Now action potential is transferred from SA node to the AV node, AVN, then AV muscles, and finally to the Purkinje fibers. Due to this, ventricles contract. As ventricles get contracted, atria get relaxed. ये पॉइंट ध्यान में रखना, हम फिर से इस पॉइंट पर आने वाले हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देन कस्पिड वॉल्स क्लोज्ड। कस्पिड वॉल्स क्लोज क्यों हो गए? क्योंकि वेंट्रिकल्स में से ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जाना चाहिए। वॉल्स का फंक्शन हमें पता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. So cuspid walls get closed and the sound which is created due to the closing of cuspid walls is called lub sound. It is the first heart sound. Then semilunar valves open and blood from the ventricles is forced out into the arteries, that is from right ventricle into the pulmonary arteries and from left ventricle into the systemic aorta, and then the ventricles get relaxed. और इसके पहले मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वो पॉइंट था एट्रिया रिलैक्स. अब एट्रिया रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए, यानी all the four chambers are relaxed, means heart again returns into which phase? Joint diastole, यानी साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी. और वेंट्रिकल्स जब भी रिलैक्स होते हैं तो सेमिलुनर वॉल्स कहाँ पे रहते हैं? सेमिलुनर वॉल्स दे आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ आर्टरीज, लार्ज आर्टरीज, pulmonary and systemic aorta. These semilunar valves, they get closed and it creates the particular sound which is known as dub sound. It is the second heart sound. Now let us think about the numerical points. नीट या सीटी एग्ज़ाम में कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अपने बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं. बहुत इजी रहते हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो करने की बात रहती नहीं, लेकिन आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. देखते हैं ये टॉपिक पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. वी नो दैट कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू जॉइंट डायस्टोल प्लस atrial systole plus ventricular systole, that is 0.4 seconds plus 0.1 seconds plus 0.3 seconds, total 0.8 seconds. ये अपना बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया द ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल, ये आपको पता नहीं होता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में एट्रियल डायस्टोल कहीं पे भी लिखा नहीं है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एट्रियल डायस्टोल इज इक्वल टू जॉइंट डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकंड, thus एट्रियल डायस्टोल इज 0.7 सेकंड्स. अगेन ये अलग से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है. एट्रियल डायस्टोल मीन्स एट्रिया कितनी देर तक रिलैक्स कंडीशन में है. अगर आपको एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन मालूम है जो है 0.1 सेकंड और टोटल ड्यूरेशन मालूम है कार्डियक साइकिल का, वो है 0.8 सेकंड. अगर हमने 0.8 सेकंड में से एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दिया तो
जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज़ 0.7 सेकंड, ये आएगा अपना एट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन। अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैसे कैलकुलेट करना है, तो जॉइंट डायस्टोल प्लस एट्रियल सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल है अपना 0.4 सेकंड्स और एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकंड, thus वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज 0.5 सेकंड्स। अलग तरीके से भी हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल ड्यूरेशन माइनस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टोटल ड्यूरेशन है साइकिल का 0.8 सेकंड, उसमें से हमने सब्सट्रैक्ट किया वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन जो है 0.3 सेकंड्स, रिमेनिंग टाइम is the ventricular diastole which is 0.5 seconds. The last topic from this video is summary. इसमें मैं थोड़ा समराइज करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ IMP पॉइंट्स रिपीट करने जा रहा हूँ। पहली बात आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी रहती है वो 3 फेजेस के नेम्स और उनका ड्यूरेशन। अगेन the second point is ventricular filling. It takes place by two ways. Ventricles fill passively from atria during joint diastole, and by this process 70% of ventricles are filled. Again, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब एट्रिया में से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। इस तरह से लगभग 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में कलेक्ट होता है और वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। अगेन व्हेन cuspid valves are closed, semilunar valves are open, and when semilunar valves are closed, cuspid valves are open. हार्ट साउंड्स पहले भी मैंने बताया आपको। फर्स्ट साउंड इज लब साउंड and it is caused due to the closing of cuspid valves. Second sound is dub sound and it is due to the closing of semilunar valves. Students, I hope you enjoyed the video and cleared the concepts of cardiac cycle. But वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।